कैन यू मेरे को सुन पाओगे? कैसे पता लगेगा मेरे को सुन पा रहे नहीं सुन पा रहे? A very good a very good evening to all the young friends, and welcome to all the participants. Thanks to Milo family who's connected us. Today you've got a lot of questions on menstruation. But before I answer your questions, I would like to explain what menstruation is and how it is controlled by the various hormones. Menstruation, which is known as periods, हिंदी में जिसको माहवारी या महीना कहते हैं, it is vaginal bleeding which women experiences every month for 35 to 45 years in their life. Every month your body prepares you for the pregnancy. But if the pregnancy does not take place, then the inner lining of the uterus, which is called as endometrium, falls down as a menstrual blood and passes through the cervix and vagina in the form of blood. This blood contains menstrual blood as well as the tissues. This blood is absolutely pure and is not infective at all. Now comes to the question that how menstruation takes place. Menstruation is controlled by various hormones. There are 3 phases in menstruation. 4 phases: menstrual phase, follicular phase, ovulation phase, and secretory phase. All these 4 phases are controlled by chemicals in our body which are called as hormones. These hormones are controlled by a gland in the brain which is called pituitary gland, and by the ovary, which is part of a female reproductive system. There is a balance of the hormones secreted by pituitary. They are follicular stimulating hormone and luteinizing hormone, and ovary produces hormone like progesterones and estrogens, and there's a balance between these 4 of them which regulates our ovulation and menstrual cycle. If there is a disturbance in these hormones, it leads to ovulatory and menstrual disturbances. Now let's see when the menstruation starts. The menstruation starts around the age 10 to 15 years, and a woman starts menstruating at the age ranging from 45 to 51 years. There could be a variation of 5 to 10% in each case. Every month, women loses blood about, measure, you say, about 2 to 3 tablespoons, which is around 20 to 40 ml or 60 ml. If the women loses more than 80 ml of blood per month, it is called as heavy bleeding. If the woman loses less than 10 ml of blood, it is called scanty menstruation. The first day of the menstrual cycle period is called a first day of menstruation. You calculate the next menstrual date from the first day of the menstruation. Normally, the menstrual cycle is of 28 days, but there are variations from 45 days to 2 months, or it could be as early as 1 days. That one person has to monitor. Now comes to the when you have menstruation, a lot of women experiences premenstrual symptoms, especially girls. They have pain in the breast, they have fatigue, restlessness, bloating, and a lot of pain in the abdomen. And they're very irritable also. And pain in the breast is the most common symptoms. These are because of the fall in the estrogens and progesterones hormone just before the onset of periods. So these are normal symptoms. If you're having a severe pain in the abdomen or severe nostalgia, so you have to contact the doctor. Now I've
come over to the question answer sessions. Now, the question been asked by a lot of participants, and there's a battery of questions. Let me get into our question answer sessions. The first question is, does irregular periods affect my ovulation period? If yes, how can I calculate my ovulation times? Yeah, definitely. Yeah, irregular periods, that means you do not know when the ovulation is taking place. So, how will you calculate your ovulation? Ovulation is calculated by three parameters. First is the temperature. Like every woman, normally, even a 28 days cycle, the ovulation takes place 14 day prior to the cycle is due. That means in a 28 day cycle, on the 14th day, the woman will be ovulating. And you can take 4 days this side, 4 days that side. So how do you calculate is the when you're ovulating, the day of ovulation, your temperature dips a little and by zero point 0.2 degrees centigrade, and then after the ovulation, the temperature rises by 0.8 to 1 degree Fahrenheit. This is called basal body temperatures. And this temperature has to be recorded, and you keep the thermometer by your bedside. And the moment you get up, record the temperature and chart on the temperature chart. But this is very unpredictable. This is not a very correct method. Then another method is you can see by the discharge of the cervical mucus. You have a mucoid discharge in the vagina when you have your ovulation. Third is the best. These days, their ovulation kits are available. You can time your ovulation by these testing kits. They are available, and a day before you can start doing these kits, using these kits by urine testing, and then if the kit shows ovulation is positive, that means it's positive, and you should have time your intercourse within 4 to 5 hours of the ovulation. The ovulation kits are the best method available for timing of ovulation. This shows LH surge. सेकेंड क्वेश्चन इज, बेबी होने के बाद पीरियड्स इरेगुलर हो गए, ऐसा क्यों हुआ? बेबी होने के बाद आप लोग बच्चे को फीड करते हैं. फीड करने से प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है बढ़ जाता है और उससे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, मतलब चढ़ चढ़ के होते हैं. किसी किसी को पीरियड्स होते ही नहीं है एक साल तक, और इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हो जाए, क्योंकि चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन तभी भी चांसेस होते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं. डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है पीरियड्स में, मैं क्या करूं? नॉर्मली डिलीवरी के बाद फर्स्ट 3 पीरियड्स जो होते हैं वो हैवी होते हैं, फ्लो मोर देन नॉर्मल होता है. बट अगर बराबर होता रहे तो आप अपने डॉक्टर को संपर्क करें, अल्ट्रासाउंड कराएं, टेस्ट कराएं, और फिर उससे निष्कर्ष मिलेगा. मेरा लास्ट पीरियड 40 डेज पहले आया था, प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव है, क्या करना चाहिए? आप देखिए कि आपको अगर प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है, अगर आप ये टाइम करिए कि आपको पीरियड्स रेगुलर होते हैं कि डिले पीरियड्स होते हैं. अगर आपको डिलेड पीरियड्स होते हैं, लाइक चढ़ चढ़ के पीरियड होते हैं, 40 डेज में होते हैं, 50 डेज में होते हैं, तो आप एक बार वेट करिए थोड़े दिन बाद, और 15 दिन बाद फिर से आप यूरिन टेस्ट करिए प्रेगनेंसी है या नहीं है. और एक आप ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं, जिसा बीटा HCG लेवल्स कहते हैं. अगर वो रेस हैं तो प्रेगनेंसी है, और अगर कभी कभी यूरिन टेस्ट में प्रेगनेंसी टेस्ट में पॉजिटिव नहीं आता है तो आप बीटा HCG भी करा सकते हैं. अगर वो नेगेटिव है तो एक हार्मोन विड्रॉल टैबलेट ले लीजिए, और उससे आपको विद इन 10 डेज पीरियड्स हो जाएगा. वो आप प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट्स आती हैं, वो एक टैबलेट दिन में 3 बार करके 3 दिन खाएंगे, उसके विद इन 10 डेज पीरियड हो जाएगा, और फिर आप डॉक्टर से संपर्क करेंगे कि ऐसा मुझे क्यों हुआ. What to eat to prevent from irregular periods? You should eat a healthy diet, low in calories and high in roughage and high in vitamins and antioxidants.
और अगर आप मोटे हैं तो आप एक्सरसाइज करिए जिससे आपका वेट कम हो जाए। और ओबेसिटी सबसे इम्पोर्टेंट कॉज है फॉर इरेगुलर पीरियड्स। चढ़ चढ़ के पीरियड्स होते हैं बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। वो अगर आप कभी सेशन लेंगे पीसीओडी का तो मैं उसमें कवर कर दूंगी। मेरे व्हाट टू ईट टू प्रिवेंट फ्रॉम इरेगुलर पीरियड्स, वो तो मैंने आपको बता दिया। मेरे पीरियड्स बहुत पेनफुल होते हैं, शुड आई कंसल्ट द डॉक्टर? अगर इसमें पीरियड्स ये कहते हैं कि एक तो माइल्ड मॉडरेट डिस्कम्फर्ट है, एक बहुत सिवियर डिस्कम्फर्ट है। अगर आपको इतना ज़्यादा पेन है कि आपको इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत पड़ती है या आपको डे टू डे एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं तो आप डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि कभी कभी एंडोमेट्रियोसिस या ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है विजाइन इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की, दैट कैन गिव राइज टू पेनफुल पीरियड्स। तो आप डॉक्टर से संपर्क करें। अगर माइल्ड पेन है, मॉडरेट पेन है जिसके आप सह सकते हैं और अपना काम करते रहते हैं, तो इसके लिए आप छोटी सी गोली खा सकते हैं। आपको मेफ्टाल स्पास पता है, ड्रोटिन पता है, वो आप खा लीजिए, सिकाई कर लीजिए। ये तो आप प्लेन पैरासिटामोल भी खा लेंगे, आजकल डोलो सबको पता है, वो खा लेंगे, उससे भी दर्द आपका ठीक हो जाएगा। और एक आप पीरियड्स के से पहले ज़्यादा तला भुना खाना नहीं खाइए, एक्सरसाइज करिए तो पीरियड्स आपके पेनफुल नहीं होंगे। और नमक भी कम खाया करिए पीरियड्स से पहले थोड़ा सा, तो उनके पीरियड्स में फ़ायदा होगा। मेरी डिलीवरी को 2 महीने हो गए हैं, अभी तक पीरियड्स नहीं आए हैं। मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, क्या करूं? आप बच्चे को फीड करा रहे होंगे इसलिए पीरियड्स नहीं आए हैं। ये बहुत कॉमन है, मैं आपको बता चुकी हूँ ना, प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाता है, इसकी वजह से पीरियड्स नहीं आते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बट आप ध्यान रखिएगा कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो जाए। इज सेक्स सेफ ड्यूरिंग पीरियड्स? मेरे हिसाब से तो सेक्स सेफ किस सेंस में आप पूछना चाहती हैं? अगर मेरे हिसाब से पीरियड्स के समय सेक्स नहीं होना चाहिए, बिकॉज इज गिव राइज टू लॉट ऑफ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस लाइक सिफिलिस हो जाएगी, HIV हो जाएगा, क्लेमाइडिया हो जाएगा, ट्राइकोमोनासिस हो जाएगी, उससे सफ़ेद पानी जाने लगेगा, या बार की बार आपको यूरिन में, पेशाब में प्रॉब्लम होने लगेगी। तो सेक्स इज नॉट सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और अगर ये है कि प्रेगनेंसी नहीं होती मुझे ड्यूरिंग पीरियड्स, तो प्रेगनेंसी वैसे तो पीरियड्स के समय नहीं होती है, बट अगर लास्ट डे ऑफ द पीरियड, जिसके पीरियड 6-7 दिन चलते हैं और लास्ट डे अगर आप करते हैं तो उसमें प्रेगनेंसी के चांसेस हैं, बिकॉज जो आपका आदमी का जो कीटाणु है वो 7 दिन तक जीवित रहता है। तो अगर आपको बीच में ओव्यूलेशन हो गया तो आपको डेफिनेटली प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो फर्स्ट 2 डेज तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट 3 डेज, लेकिन अगर लास्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन आप साथ रहते हैं तो चांसेस हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो जाए। बट मेरी सलाह से ड्यूरिंग पीरियड्स आप इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए, उससे आपको सावधान रहना चाहिए। शुड वी यूज प्रोटेक्शंस ड्यूरिंग द पीरियड? अगर आपके हस्बैंड बहुत ही अनकोऑपरेटिव हैं तो आप सेफ आप कंडोम्स यूज कर सकते हैं या मेंस्ट्रुअल कप्स यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग इंटरकोर्स। उसके लिए अलग तरह के मेंस्ट्रुअल कप्स बने हुए हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। दे आर मेड ऑफ अल्ट्रा थिन मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन। पीरियड्स में हेयर वॉश करने से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, क्या ये सच है? नहीं, ये बिल्कुल मिथ है, ये गलत चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं होता। अनप्रोटेक्टेड सेक्स ड्यूरिंग पीरियड्स कैन लीड टू प्रेगनेंसी और नॉट? उसका मैंने जवाब ऑलरेडी दे दिया है कि फर्स्ट 2 डेज में कुछ नहीं होता, अगर लेकिन लंबा साइकिल है 7-8 डेज का और लास्ट डे होता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं। प्रेगनेंसी में सेक्स करना सेफ है बेबी के लिए? मैं नॉर्मली तो प्रेग्नेंट मदर्स का मन ही नहीं होता है कि वो सेक्सुअल एक्टिविटी में करें, बिकॉज दे आर स्केर्ड कि चांसेस कुछ खराब ना हो जाए बच्चे को। नॉर्मली हस्बैंड भी डरता है। तो प्रेगनेंसी में सेक्स करने से हो सकता है मिसकैरेजेस हो जाएं, हो सकता है प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाए आपको, और हो सकता है कि आपको कुछ इन्फेक्शंस हो जाएं।
तो इसलिए एब्सटेन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी करना चाहते हैं तो फर्स्ट 3 मंथ्स नहीं होनी चाहिए, लास्ट 3 मंथ्स में नहीं होनी चाहिए, बीच में हो सकती है बट नॉट इन अ डेप्थ, बहुत डीप नहीं जाना चाहिए। इससे चांसेस पेन होने के बहुत है, प्रेगनेंसी प्रीमेच्योर कंट्रैक्शंस हो सकते हैं पेनफुल, और कैन गिव राइज ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसलिए आप कम करें, फ्रीक्वेंसी शुड बी वेरी वेरी लिटिल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इस बार मुझे पीरियड्स में ब्लड क्लॉट्स आए हैं, इसका मतलब मेरा मिसकैरेज हो गया है, प्लीज गाइड। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पीरियड्स में क्लॉट आने से इसका मतलब नहीं है मिसकैरेज हो गया आपको। पीरियड में क्लॉट आना नॉर्मल चीज है। उसका मतलब जब तक कि आपको दिन नहीं चढ़े हों और प्रेगनेंसी टेस्ट आपने किया हो कि वो पॉजिटिव है और तब ब्लीडिंग आती है, तब हम सोच सकते हैं कि मिसकैरेज हुआ है, अदरवाइज नहीं। पीसीओडी हमेशा रहता है, ये मेडिसिन थोड़े टाइम लेकर ठीक हो जाएगा। पीसीओडी ठीक करने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मैडम हमको, क्योंकि पीसीओडी नॉर्मली 90% केसेस में मोटे लोगों को होता है। तो उसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, हाई कैलोरिक डाइट आपको नहीं लेनी पड़ेगी, लो कैलोरीज खाइए, कम कैलोरीज खाइए, और हाई प्रोटीन डाइट खाइए, एक्सरसाइज करिए, कम से कम 10 किलोमीटर रनिंग करिए रोज, जिससे कि आपका बीएमआई कम हो जाए, वेट अपना रिड्यूस करिए। तो पीसी नहीं तो आपको जिंदगी भर दवाई लेने से क्या, हार्मोन्स लेने पड़ेंगे जिंदगी भर। स्ट्रेस लेवल कम करिए अपना। My pregnancy test is positive and I'm having periods from April. What should I do? Just एक, जब प्रेगनेंसी होती है तो शुरू शुरू में कभी कभी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है, या स्लाइट ब्लीडिंग बाद में भी हो सकता है, डिपेंड करता है प्लेसेंटा की लोकेशन के ऊपर। अगर प्लेसेंटा जो है आपकी आमनाल जिसे कहते हैं, वो अगर नीचे होती है तो कभी कभी ब्लीडिंग हो सकती है, और बहुत भयंकर टाइप की ब्लीडिंग हो सकती है। उसको आपको अल्ट्रासाउंड करा के ही पता लगेगा कि क्या कारण है, कि आपकी प्रेगनेंसी ठीक है, मिस अबॉर्शन तो नहीं हो रहा, या आपका लो लाइंग प्लेसेंटा है, और फिर आप डॉक्टर से संपर्क करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिस्चार्ज होता है मुझे एंड इचिंग बहुत होती है, व्हाट शुड आई डू? वाई डिस्चार्ज के लिए आपकी उम्र मुझे नहीं पता कितनी है। अगर आपकी उम्र 30 साल से ऊपर है तो आप एक पैप्समियर कराएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, दिखाएंगे, और आप पानी की जांच कराएंगे कि आपको इन्फेक्शन तो नहीं है। इन्फेक्शन जो होगा उसका ट्रीटमेंट कराएंगे। अदरवाइज आप मेंस्ट्रुअल हाइजीन को फॉलो करिए, कि रात को सोने से पहले आप ज़रूर से वॉश करिए, पोछिए, और तब आप सोइए। और आप ये जो इतनी वॉशेस के एडवर्टिजमेंट्स आते हैं वो आप जब तक यूज़ नहीं करेंगे, जब तक आपको डॉक्टर नहीं बताएंगे। आप सादे पानी से वॉश करिए और पोंछ के सोएं। और जब भी आप यूरिन जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि तभी भी आप वॉश कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इचिंग है, और आप पोछा ज़रूर करिए, क्योंकि खाली अगर गीला रहेगा तो उसमें फंगस ग्रो कर जाएगी और उससे आपको बहुत इचिंग होगी। अगर आपको इचिंग इन सब चीज़ों से ठीक नहीं होती है तो आप डॉक्टर से संपर्क करें, और डायबिटीज़ चेक करा लें कि ब्लड शुगर की वजह से भी। वही मैंने कहा, पता नहीं आपकी एज क्या है, आपकी कितने बच्चे हैं, क्या हिस्ट्री है, तो मैं इसका जवाब बहुत अच्छी तरह नहीं दे पाऊंगी आपको। पीरियड से पहले पेट के नीचे बहुत शार्प पेन होता है और वॉमिट जैसा होता है, इट इज़ नॉर्मल और नॉट, प्लीज़ हेल्प। वैसे तो नॉर्मल है, आप कोशिश करिए कुछ पेन रिलीवर खाने की, हल्का खाना खाइए और सिकाई करिए, और वॉमिट की दवाई खा लीजिए। अगर इससे भी नहीं ठीक हुआ तो डॉक्टर से संपर्क करिए। It is safe to take bath during periods. My mother-in-law refuses it. Also, it is hygienic. No, this is wrong. You can have bath twice or thrice a day during your periods. It's better to have bath during periods because you can clean that area nicely. मम्मी को समझाएंगे तो वो समझ जाएंगी। पुराने ज़माने में कहते थे ना, जब महीना होता है तो नहाते नहीं है, तीसरे दिन नहाते हैं और फिर गंदगी खत्म हो जाती है।
तो आपको सुबह शाम दोनों टाइम नहाना चाहिए और उस एरिया को खूब अच्छी तरह साफ करना चाहिए, पोंछना चाहिए और रात को सोने से पहले पैड चेंज करना चाहिए। What is the most safe option during periods, tampons and cups? I would suggest to use menstrual cups. Tampons environment friendly नहीं है और they may cause lot of infection. पता नहीं आपने रात को भूल गए चेंज करना का, वेट नहीं होगा तो आप भूल जाएंगे चेंज करना और 24 घंटे तक पड़ा रहेगा, फिर सुबह जब नहाएंगे तब चेंज करेंगे, उससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और भूल गए निकालना फिर टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो जाएगा, वो तो जानलेवा होता है और पता लगा आप हॉस्पिटलाइज हो गए फॉरगॉटन टैम्पू से। तो मेरा हिसाब है कि मेंस्ट्रुअल कप यूज करिए टैम्पूस की जगह, वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हैं, बहुत अच्छे। I take proper hygiene care of my private area before and after intercourse, but still I am suffering from UTI every month since I got married. Due to this, I am unable to conceive. What should I do? जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है ना, उससे ऐसा नहीं होता कि आप कंसीव नहीं कर पाएंगे, उससे चांसेस हैं कि आप अबॉर्शंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे यूरिनरी ट्रैक्ट एंड इट इज़ अनकम्फर्टेबल. So it is good that you're using it and you should wipe it. You've not written that you're wiping that area. You must be leaving it wet. तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता होगा उस एरिया में, तो आप अच्छे से क्लीन करेंगे और हर टाइम क्लीन. इंटरकोर्स से मुझे नहीं लगता कि यूटीआई तभी होगा जब आप वॉश नहीं करेंगे, बाथरूम नहीं जाएंगे, ढंग से नहीं क्लीन करेंगे और वेट छोड़ देंगे. अगर ज़्यादा है तो अपने हस्बैंड का भी इन्वेस्टिगेट कराइए कि उनको तो इन्फेक्शन नहीं है जो आपको इन्फेक्शन देते हैं. तो द पार्टनर शुड ऑल्सो बी ट्रीटेड इफ दैट इज अ प्रॉब्लम. मेरे पीरियड्स 3 to 4 days लेट हैं. व्हाट शुड आई ईट ड्रिंक टू गेट माई पीरियड्स? 3 to 4 एक नॉर्मल चीज़ है. मैंने कहा ना, किसी किसी का साइकिल 35 days भी हो सकता है, 40 days भी हो सकता है, 2 months भी होता है. अगर रेगुलर आता है तो कुछ बात नहीं है, लेट इज अ नॉर्मल थिंग. मेरे घर पर फंक्शन है, क्या मैं पीरियड डिले करने की मेडिसिन ले सकती हूँ? वैसे तो कहते हैं कि मेंस्ट्रुअल पीरियड जो होता है इसमें आप क्यों डिले करना चाहती हैं, मेंस्ट्रुएशन से क्या प्रॉब्लम है? इट इज, पूजा भी कर सकती हैं, सब कुछ है, क्योंकि ये तो प्योर है. दिस इज पार्ट ऑफ विमेन, बीइंग अ विमेन. तो आप एक औरत हैं, एक महिला हैं, तो आपके लिए गर्व की बात है, आपको महिला है, तो आप क्यों डिले करना चाहती हैं कि आपको जल्दी जल्दी पैड चेंज करना पड़ेगा, तो आप उसके लिए कप्स यूज कर सकती हैं. और डिले करना है तो आप एक आध बार डिले कर लीजिए, बट रेगुलरली डिले करने की आदत नहीं डालिए. इसके लिए आप पीरियड होने से 1 हफ्ते पहले हाई डोजेस में प्रोजेस्टेरॉन पिल्स खाएंगे एंड कंटिन्यू रखेंगे.